بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ برہن ممبئی مہانگر پالیکا شکشن وبھاگ کے تحت جاری ورچوئل ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے معلمہ میمونہ شیخ۔ تو آئیے آپ کے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن۔ پنجم جماعت کے سیشن میں ہم ماحول کا مطالعہ حصہ دوم میں انسان کی پیش رفت کے متعلق معلومات حاصل کریں گے آپ کی درسی کتاب کی مدد سے۔ گزشتہ سبق یعنی عمل ارتقاء میں ہم نے معلوم کیا کہ ایک بندر کا ارتقاء ہوتا گیا اور آخرکار ابتدائی انسان کی تشکیل ہوئی۔ اگلے مرحلے میں ابتدائی انسان نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے ہتھیار بنانا شروع کیا۔ انسانی ارتقاء کی مختلف منازل کا آج ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق، انسان کی پیش رفت۔ سبق کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہنرمند انسان سے جدید انسان تک کا سفر ہم دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ترقی پذیر عقل والا انسان اور تہذیب کا جائزہ لیں گے۔ نئی معلومات حاصل کرنے سے پہلے آئیے سابقہ معلومات کو تازہ کر لیتے ہیں۔ عمل ارتقاء میں آپ ارتقاء کے مفہوم سے واقف ہو چکے ہیں۔ ارتقاء کا عام مفہوم مسلسل اور دھیمی رفتار سے ہونے والی تبدیلی ہے۔ ارتقاء کا نظریہ پہلی مرتبہ واضح طور پر جس سائنسدان نے پیش کیا وہ سائنسداں چارلس ڈارون ہے۔ زمین پر جانداروں کی پیدائش کے متعلق بھی آپ کافی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ جانداروں کی دنیا کی ابتدا یک قلبی پروٹوزوا سے ہوئی۔ اسی یک قلبی پروٹوزوا سے کثیر قلبی جاندار پیدا ہوئے۔ کثیر قلبی جاندار آہستہ آہستہ ترقی کرتے گئے اور اسی عمل سے مختلف قسم کی نباتات اور جانوروں کی پیدائش ہوئی۔ عمل ارتقاء کے آخری حصے میں ہم نے ابتدائی انسان آدی مانو کے متعلق مختصراً معلومات حاصل کی تھی۔ ڈارون کے نظریے کے مطابق ایک بندر کا ارتقاء ہوتا گیا اور آخرکار ابتدائی انسان یعنی آدی مانو کی تشکیل ہوئی۔ ہنرمند انسان سے جدید انسان تک کے سفر میں آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہنرمند انسان کی۔ ہنرمند انسان اپنے ہاتھوں کو ہنرمندی سے استعمال کرنے والا انسان یعنی ہنرمند انسان۔ سب سے پہلے براعظم افریقہ میں تنزانیہ اور کینیا ان دونوں ملکوں کے آس پاس اس انسان کی موجودگی کے ثبوت دستیاب ہوئے۔ اس کی کھوج لگانے والے سائنسداں لوئس لیکی نے اسے ہومو ہیبلس نام دیا کیونکہ اس کے باقیات کے ساتھ اس کے بنائے ہوئے ہتھیار بھی ہاتھ لگے۔
यकीनन आप सोच रहे होंगे कि होमो हैबिलिस का क्या मतलब है। तो लातीनी ज़बान में लफ्ज़ होमो का मतलब होता है इंसान। हैबिलिस का मतलब है हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। होमो का मतलब इंसान, हैबिलिस का मतलब हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। तो अब आप बताइए होमो हैबिलिस का क्या मतलब हुआ? हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान। होमो हैबिलिस या हुनरमंद इंसान दोनों पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी नहीं थी, उसमें मामूली सा खम था। होमो हैबिलिस का दिमाग जसामत में एक बंदर से बड़ा था, लेकिन उसके चेहरे और हाथों की खुसूसियात कुछ हद तक एक बंदर जैसी ही थीं। हुनरमंद इंसान के बनाए हुए हथियार बड़े जानवरों के शिकार के लिए कारआमद ना थे। आप देख सकते हैं इन हथियारों को। इनसे बड़े जानवरों का शिकार करना मुमकिन नहीं था। होमो हैबिलिस उनका इस्तेमाल सिर्फ गोश्त को खुरचने और हड्डी फोड़कर उसका गूदा हासिल करने के लिए ही कर सकता था। इसलिए अंदाजा होता है कि वो दूसरे जानवरों के शिकार का बचा कुचा गोश्त खाता होगा, छोटे जानवरों का शिकार करता होगा। अपने खाने के लिए परिंदों के अंडे, फल, कंद, जड़ें जमा करता होगा। तो ये था हुनरमंद इंसान, जिसे लुइस लेकी ने होमो हैबिलिस का नाम दिया। हुनरमंद इंसान, अपने हाथों को हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान। तो आइए अब देखते हैं सीधी पुश्त वाला इंसान। इंसान के इर्तिका में एक अहम मरहला है सीधी पुश्त वाला इंसान। इरेक्टस का मतलब है सीधा खड़ा होने वाला, इसलिए इसे होमो इरेक्टस का नाम दिया गया। तो होमो इरेक्टस यानी सीधा खड़ा होने वाला इंसान। आइए होमो इरेक्टस के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करते हैं। वो हुनरमंद इंसान के मुकाबले में ज्यादा ज़हीन था और ग्रोह में रहता था। जंगल में लगी हुई आग को देखकर इंसान आग से आगाह हुआ। सीधी पुश्त वाले इंसान ने दरख्त की जलती हुई शाखें लाकर उसके इस्तेमाल का हुनर सीखा होगा। उसके ज़माने में ज़मीन का बड़ा हिस्सा बर्फीला था, इसलिए आबो हवा इंतहाई सर्द थी। इतने सर्द माहौल में जिंदा रहना उसके लिए मुमकिन हो सका महज आग के इस्तेमाल से। आग का इस्तेमाल करके गर्मी पैदा होती थी, लिहाजा सर्द माहौल में जिंदा रहना मुमकिन हो पाया। लेकिन वो आग पैदा करने के हुनर से वाकिफ नहीं था। होमो इरेक्टस यानी सीधी पुश्त वाले इंसान के हथियार भी साबिका हथियारों के मुकाबले में बेहतर और सुडौल थे। वो दस्ती कुल्हाड़ी जैसे हथियार बनाता था। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बरआज़मों में सीधी पुश्त वाले इंसान के बाक़ियात और उनके साथ उनके बनाए हुए हथियार दस्तयाब हुए हैं।
हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक के सफ़र में अब हम बात करेंगे ताकतवर इंसान की। ताकतवर इंसान जिसे निएंडरथल इंसान या निएंडरथल मैन कहा जाता है। इंसान के इर्तिका में बेहतरी का एक और मरहला यानी ताकतवर इंसान। वो तनोमंद था। उसके बाक़ियात सबसे पहले मुल्क जर्मनी में निएंडरथल में दस्तयाब हुए, इसलिए उसे निएंडरथल इंसान कहा जाता है। ताकतवर इंसान तनोमंद तो था ही, वो सीधी पुश्त वाले इंसान से ज़्यादा ज़हीन था। और हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि सीधी पुश्त वाला इंसान यानी होमो इरेक्टस हुनरमंद इंसान से ज़्यादा ज़हीन था। तो हुनरमंद इंसान से ज़्यादा ज़हीन था होमो इरेक्टस, यानी होमो हेबिलिस से ज़्यादा ज़हीन था होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस से ज़्यादा ज़हीन था निएंडरथल इंसान यानी ताकतवर इंसान। ताकतवर इंसान खुसूसन गारों में रहता था। वो गोल पत्थर और पत्थर को तराश कर निकाली गई परतों की मदद से मुख्तलिफ शक्लों के हथियार बनाता था और उन्हें लंबी हड्डियों और लकड़ी के डांडों पर बिठाकर भाला, कुल्हाड़ी वगैरह हथियार बनाता था। वो बड़े जानवरों का शिकार करता था। चमड़े में लगे हुए गोश्त को खुरच कर निकालने के लिए पत्थर की छेनी का इस्तेमाल करता था। ताकतवर इंसान चमड़े के कपड़े इस्तेमाल करता था। ताकतवर इंसान खुसूसन गोश्तखोर था और आग पर गोश्त को भून कर खाता था। ताकतवर इंसान ने सख्त लकड़ी वाली शाखों को रगड़कर या चकमाक को एक के ऊपर एक पटक कर निकलने वाली चिंगारी से आग पैदा करने का हुनर भी सीख लिया था। ये देख रहे हैं आप, चकमाक एक किस्म का पत्थर, अंग्रेजी में जिसे फ्लिंटस्टोन कहते हैं, जो चकमाक को एक के ऊपर एक पटक कर निकलने वाली चिंगारी से आग पैदा करने का हुनर भी ताकतवर इंसान ने सीख लिया था। मुमकिन है ताकतवर इंसान ने तख्लीकी हुनर में भी पेशरफ्त की हो। बाज़ साइंसदानों के ख्याल से वो फौरी ज़रूरत के तहत हलक से आवाज़ें निकालकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता होगा, लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ताकतवर इंसान के पास अपनी बात को अल्फाज के ज़रिए अदा करने वाला कोई लिसानी निज़ाम मौजूद था या नहीं। ग्रोह के किसी फर्द के मरने पर उसे दफन करते वक्त ताकतवर इंसान मुर्दे के साथ हथियार, जानवरों के सींग जैसी चीज़ें रख देता था। वो मुर्दा शख्स के जिस्म पर लाल रंग की मिट्टी मल देता था। इन बातों से मालूम होता है कि शायद उस ज़माने में मुर्दों को दफन करने की कोई रस्म मौजूद थी। ज़माना गुजरने के बाद ताकतवर इंसान के बाज़ गिरोह अफ्रीका से निकलकर बर्र-ए-आज़म यूरोप और एशिया तक पहुँचे और वहाँ रहने लगे। जाहिर है कि उन्हें मुख्तलिफ मौसमों का मुकाबला करना पड़ा। जिंदा रहने और अनाज हासिल करने के लिए उन्हें नए तरीके इख्तियार करने पड़े। इसलिए उनके ज़माने में ज़िंदगी गुजारने के लिए दरकार हथियारों को बनाने और उनके इस्तेमाल के तरीक़ों में इस्लाह हुई, लेकिन ऐसा होने के लिए हज़ारों बरस का ज़माना लगा।
ताकतवर इंसान के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की याफ्ता इंसान को अक्लमंद इंसान के नाम से पहचाना जाता है, जिसका तारुफ हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में हासिल करेंगे। ताकतवर इंसान और अक्लमंद इंसान कुछ ज़माने तक यूरोप में एक साथ रहते थे। अक्लमंद इंसानों के ग्रोहों से तसादुम, माहौल की तब्दीलियों से मुताबिकत पैदा ना कर सकना, ये ऐसी बाज़ वजूहात थीं जिनकी बिना पर ताकतवर इंसानों का वजूद ख़त्म हो गया होगा। माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं। कार्बन 14 का तरीका, जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है, इस तरीके के ज़रिए किसी भी ढांचे की उम्र का पता लगाया जा सकता है। कार्बन 14 के तरीके की दरियाफ्त की विलाड लिबी ने, और इसके लिए उन्हें 1960 में केमिस्ट्री में यानी इल्म कीमिया में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। विलाड लिबी के पेश करदा इस तरीके यानी कार्बन 14 तरीके की बुनियाद पर कहा जाता है कि तकरीबन 30,000 साल पहले ताकतवर इंसान नापैद हो गए थे। अब तक हमने हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक के इर्तिकाई सफ़र की जो मालूमात हासिल की, आइए उसका इआदा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने हुनरमंद इंसान का तारुफ हासिल किया। हुनरमंद इंसान किसे कहते हैं? अपने हाथों को हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान, यानी हुनरमंद इंसान। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि होमो हैबिलिस का क्या मतलब है। तो लातीनी ज़बान में लफ्ज़ होमो का मतलब होता है इंसान, हैबिलिस का मतलब है हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। होमो का मतलब इंसान, हैबिलिस का मतलब हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। तो अब आप बताइए होमो हैबिलिस का क्या मतलब हुआ? हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान। हुनरमंद इंसान के बाद हमने सीधी पुश्त वाले इंसान के मुतालिक मालूमात हासिल की। इंसान के इर्तिका में एक अहम मरहला है सीधी पुश्त वाला इंसान। इरेक्टस का मतलब है सीधा खड़ा होने वाला, इसलिए इसे होमो इरेक्टस नाम दिया गया। ताकतवर इंसान तनोमंद तो था ही, वो सीधी पुश्त वाले इंसान से ज़्यादा ज़हीन था। और हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि सीधी पुश्त वाला इंसान यानी होमो इरेक्टस हुनरमंद इंसान से ज़्यादा ज़हीन था। तो हुनरमंद इंसान से ज़्यादा ज़हीन था होमो इरेक्टस, यानी होमो हैबिलिस से ज़्यादा ज़हीन था होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस से ज़्यादा ज़हीन था निएंडरथल इंसान यानी ताकतवर इंसान। ताकतवर इंसान के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की याफ्ता इंसान को अक्लमंद इंसान के नाम से पहचाना जाता है, जिसका तारुफ हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में हासिल करेंगे। एंड इट्स एक्टिविटी टाइम नाउ। आपको क्या करना है? आपके लिए एक सरगर्मी है। मंदरजा झैल लफ्ज़ी मुअम्मा हल कीजिए। इशारे दिए हुए हैं, इशारों की मदद से आपको ये लफ्ज़ी मुअम्मा हल करना है। ये बहुत दिलचस्प है और आसान भी। अभी हमने जो कुछ पढ़ा उसी की मदद से हमें इस लफ्ज़ी मुअम्मे को हल करना है।
تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ تو آئیے دی ہوئی خانہ پوری کو مکمل کرتے ہوئے اس لفظی معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہنرمند انسان کو سائنسداں لوئس لیکی نے ڈیش نام دیا۔ تو آپ کو یاد ہے کیا نام دیا؟ ہومو ہیبلس۔ ویری گڈ۔ دوسرا ہے لاطینی زبان میں لفظ ڈیش کا مطلب ہوتا ہے انسان۔ تو لاطینی زبان میں کس لفظ کا مطلب ہوتا ہے انسان؟ ہومو کا مطلب ہوتا ہے انسان۔ تیسری خانہ پوری ہے ڈیش کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونے والا۔ تو کس لفظ کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونے والا؟ اریکٹس کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونے والا۔ چوتھی خانہ پوری ہے جنگل میں لگی ہوئی آگ کو دیکھ کر ڈیش آگ سے آگاہ ہوا۔ ہم جانتے ہیں اچھی طرح جنگل میں لگی ہوئی آگ کو دیکھ کر انسان آگ سے آگاہ ہوا۔ پانچویں خانہ پوری ہے سیدھی پشت والا انسان ڈیش جیسے ہتھیار بناتا تھا۔ تو سیدھی پشت والا انسان کیسے ہتھیار بناتا تھا؟ دستی کلہاڑی جیسے ہتھیار بناتا تھا۔ چھٹی خانہ پوری ہے طاقتور انسان خصوصاً ڈیش میں رہتا تھا۔ تو طاقتور انسان کہاں رہتا تھا؟ یاد کیجئے، ابھی ہم نے پڑھا ہے طاقتور انسان خصوصاً غاروں میں رہتا تھا۔ تو یہ تو 6 خانہ پوری اور ان کے جوابات ہو گئے۔ آگے جو خانہ پوری دی ہوئی ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے جب ہم عقل مند انسان کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ترقی پذیر عقل والا انسان اور تہذیب اس حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔